So dear students, today our topic is chapter number 12, Introduction to Presentation. The researchers have proved that the visual effects can create greater impact over other modes of communication. Today, presentation ability is considered to be the most essential criteria in the recruitment of people almost at all the levels. Presentation skill matters a lot when we propose a new idea or an existing concept to others. Presentation skill not only includes the content of presentation, but it also includes flow of presentation as well as the way you present it. Quite often it happens that a person would like to share some good ideas or concept, but due to a poor presentation or its improper flow, the actual meaning gets lost. Today, computers are highly used to prepare effective presentation. A presentation can contain numbers of slides or maybe in form of animation. In this chapter, we shall learn how to create an effective presentation using computers. You are now familiar with OpenOffice.org. Impress is a program which is a part of OpenOffice.org. It facilitates creation of presentation. It allows us to prepare a simple presentation or to add animation in it. It also facilitates in inserting different objects like graph, tables, pictures or movies in the slides to make the presentation more effective. तो आपको तो OpenOffice.org के बारे में अच्छी तरीके से पता है, तो उसमें इम्प्रेस नाम का एक प्रोग्राम है जो OpenOffice.org का एक पार्ट है, एक भाग है. तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की सुविधा है, जो फैसिलिटी होती है वो ये हमें प्रोवाइड करता है और हमें एक सिंपल प्रेजेंटेशन तैयार करने या फिर उसमें एनिमेशन ऐड करने की भी ये हमें परमिशन देता है. और वो प्रेजेंटेशन को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें ग्राफ, उसके बाद टेबल्स और पिक्चर्स या फिर मूवीज़ को स्लाइड में इंसर्ट करने की जो फैसिलिटी है वो भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है. Next topic is advantages of using a presentation. There are numbers of advantages of using a presentation prepared with computer. In that first, in corporate, a person show his idea to a group of people using presentation. तो कॉरपोरेट में कोई भी पर्सन कोई भी ग्रुप के समक्ष प्रेजेंटेशन का यूज़ करके अपने जो थॉट्स है उसे प्रेजेंट कर सकता है. सेकेंड इज टुडे प्रेजेंटेशन इज हाईली यूज्ड इन टीचिंग. सेवरल कॉन्सेप्ट विच मे बी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कैन इजीली बी टॉट यूजिंग प्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. अ complete digestive system using pictures and animation can be shown very effectively using presentation. So आज जो स्टडी होती है, जो टीचिंग फैकल्टी है, उसमें भी क्या होता है, प्रेजेंटेशन का यूज़ हम करते हैं. तो वो हम क्यों यूज़ करते हैं, तो कोई डिफ़िकल्ट जो टॉपिक्स होते हैं उसे हम एक्सप्लेन इजीली नहीं कर सकते हैं, तो वो हम प्रेजेंटेशन की हेल्प से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं. तो उसका एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसे जो ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे एक्सप्लेन करने के लिए टीचर्स ये प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं और उसमें हम पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं. उससे क्या होता है कि एनिमेशन और पिक्चर्स के हेल्प से जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम समझ पाते हैं. थर्ड इज मॉडल्स ऑफ an actual building or a machine or any complex system can easily be created and explained. It may cost us very high otherwise if models are prepared using cardboards and other material. तो क्या होता है कि बिल्डिंग या फिर मशीन या फिर किसी कोई मॉडल्स आसानी से तैयार किए या फिर समझाए भी जा सकते हैं, तो वो हमें बहुत महंगे पड़ते हैं. तो हम क्या करते हैं कि मॉडल कार्डबोर्ड और जो दूसरी जो सामग्री है उसका यूज़ करके हम वो मॉडल्स बनाते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रिंटिंग ऑफ प्रेजेंटेशंस क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर इज़ ऑल्सो पॉसिबल. मॉडर्न कंप्यूटर्स अलाउस many facilities in preparation of presentation. Apart from inserting graphs, pictures or sounds in a presentation,
We can insert word processor file or a spreadsheet or even a database. तो जो मॉडर्न कंप्यूटर है, जो आधुनिक कंप्यूटर है, उसके जो प्रेजेंटेशन की तैयारी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो हमें प्रोवाइड करते हैं और उसमें ग्राफ, पिक्चर्स या फिर साउंड इंसर्ट करने के अलावा हम वर्ड प्रोसेसर फाइल या फिर स्प्रेडशीट या फिर डेटाबेस भी हम इंसर्ट उसमें कर सकते हैं. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ Impress. OpenOffice.org's presentation program is called Impress. In a presentation, slides are created and can have many different objects like bullets and numbers list, text, tables, pictures, charts, and a wide range of graphic objects contained in it. Impress have features like a spelling checker, a tracers, prepare packages, text style, attractive background style, etc. similar to the features available in Writer. तो OpenOffice.org ये क्या है? प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम इम्प्रेस है, उसे हम इम्प्रेस कहते हैं कि OpenOffice.org's प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड इम्प्रेस. प्रेजेंटेशन में अलग अलग ऑब्जेक्ट जैसे कि बुलेट्स या फिर नंबर्स भी होते हैं और उसमें टेक्स्ट, टेबल्स, पिक्चर्स, चार्ट्स और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी मात्रा में श्रृंखला द्वारा उसे स्लाइड्स बनाई गई होती है. और इम्प्रेस में राइटर में उपलब्ध फीचर्स जैसे कि फीचर्स, स्पेलिंग चेकर, थिसॉर्स, प्री पैकेजेस, टेक्स्ट स्टाइल, अट्रैक्टिव बैकग्राउंड स्टाइल, ऐसे सारे स्टाइल्स होती है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग इम्प्रेस एंड क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन. You can open Impress in different ways. If the shortcut is created, you will find icon for OpenOffice.org 3.2 Impress on your desktop. If the icon is present, then double click on the icon. If no shortcut is available, then choose Application, Office, OpenOffice.org 3.2 Impress. See figure 20.1. See figure 12.1. Doing so, you will get the screen of presentation wizard as shown in figure 12.2. There will be three options available as shown below. In that, first, empty presentation, form templates, and third is open existing presentation. So तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो इम्प्रेस प्रोग्राम है उसे स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं. तो इससे आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग तरीक़ों से ये प्रोग्राम उसे ओपन कर सकते हो और उसके लिए शॉर्टकट्स होते हैं वो भी क्रिएट किए जाते हैं. तो आपको आपके डेस्कटॉप पर OpenOffice.org इम्प्रेस आइकॉन आपको मिलेगा और यदि आइकॉन प्रेजेंट हो तो उस पर डबल क्लिक आपको करना है. अगर ये आइकॉन हो तो आपको उस पर डबल क्लिक करना है. और अगर शॉर्टकट नहीं हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन मेन्यू में क्लिक करना है, उसके बाद ऑफिस और उसके बाद OpenOffice.org 3.2 इम्प्रेस, ये आपको क्लिक करना है. तो उसमें क्या होगा कि नीचे दर्शाए गए अनुसार आपको वहाँ पर 3 ऑप्शंस होंगे. उसमें फर्स्ट था एम्प्टी प्रेजेंटेशन, सेकेंड फॉर्म टेम्पलेट्स एंड थर्ड इज ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. Select empty presentation if not selected and then click on create button. A new blank presentation will open. A file created in Impress is called presentation. तो यहाँ पर presentation की आपको definition भी दी गई है. A file created in Impress is called presentation. कि Impress में जो फाइल आप क्रिएट करते हैं उसे हम presentation कहते हैं. तो अगर empty presentation चूज़ नहीं किया हो, आपने पसंद नहीं किया हो, तो आपको पसंद करना है और उसके बाद क्रिएट बटन पर आपको क्लिक करना है और एक नया ब्लैंक आपके सामने प्रेजेंटेशन ओपन होगा. यहाँ पर फिगर 12.2 दिया है प्रेजेंटेशन विजार्ड की. इफ़ यू डोंट वांट दिस विजार्ड स्क्रीन अगेन, यू कैन सिलेक्ट डू नॉट शो दिस विजार्ड अगेन ऑप्शन and then click on create. The screen so opened is called the main Impress window. See figure 12.3. तो अगर
आप इस विजार्ड स्क्रीन को फिर से नहीं ओपन करना चाहते तो आपको क्या करना है, डू नॉट शो दिस विजार्ड अगेन, ये ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो स्क्रीन ओपन होगी उसे हम मेन इम्प्रेस विंडो कहते हैं। द मेन इम्प्रेस विंडो हैज़ 3 parts. First is the slide pane, then the workspace and the task pane. Several toolbars can be displayed on the screen during the creation of a presentation. Same as you are doing in Writer, the toolbars on the screen can be hidden if they are no longer useful in the presentation. To maximize the workspace area, you can remove the slides pane or the task pane from screen by clicking the X in the upper right corner of each pane. This pane can be viewed again on the screen by selecting View Slide Pane or View Task Pane from the menu option. Hiding or displaying the panes can also be done by clicking the Hide and Show marker. See figure 12.3 in the middle of the vertical separator line. तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि मेन इम्प्रेस विंडो को ओपन करने के जो 3 पार्ट्स है, फर्स्ट है उसमें स्लाइड पैन, सेकंड वर्कस्पेस एंड थर्ड इज टास्क पैन। तो उसी तरह प्रेजेंटेशन की रचना के दौरान स्क्रीन पर अलग अलग टूलबार भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर टूलबार के प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटेशन में ज़्यादा यूज़फुल न हो तो उन्हें स्क्रीन पर से दूर भी हम कर सकते हैं। वर्कस्पेस एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको स्लाइड पेन या फिर टास्क पेन को स्क्रीन पर से हटाने के लिए प्रत्येक पेन के ऊपरी राइट कॉर्नर में जो ये क्रॉस का निशान आता है, क्रॉस का सिंबल आता है, तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना होगा। और एक पेन को फिर से स्क्रीन पर देखने के लिए आपको मेनू ऑप्शन में व्यू अ स्लाइड पेन या व्यू अ टास्क पेन, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। और पेन को हाइड या फिर डिस्प्ले करने के लिए एक वर्टिकल लाइन के जो मिडल में आए हाइड एंड शो, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइड पेन। वन ऑफ 3 parts ऑफ द मेन इम्प्रेस विंडो इज स्लाइड पेन। दिस पार्ट कंटेन्स द स्मॉलर पिक्चर्स ऑफ द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन. The smaller pictures of your actual slides are called thumbnails. The thumbnails are in the same order of the slides of your presentation. The order of the slides can be changed. Clicking a slide in the pen, the slide will be selected as current slide and will be placed in the workspace. When a slide is in the workspace, you can edit it as per your needs. Several additional operations can be carried out on current slide or on selected slides or on all slides simultaneously in the slide pane. Some of the common operations are listed below. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन इम्प्रेस विंडो उसके 3 भागों में से एक भाग को हम स्लाइड पेन कहते हैं। तो ये भाग में आपके जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स है उसके छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं। तो थंबनेल आपके जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स है उसी क्रम में भी होते हैं। तो स्लाइड का क्रम बदला भी जा सकता है और इस पेन में स्लाइड पर क्लिक करने से एक स्लाइड सिलेक्ट होकर करंट स्लाइड के रूप में एक वर्कस्पेस में आ जाएगी। और वर्कस्पेस में रही स्लाइड्स को आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ सामान्य ऑपरेशन नीचे दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट है, अ स्लाइड कैन बी मूव्ड टू अदर पोजिशन एंड थस ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स कैन बी चेंज। तो स्लाइड्स को दूसरी पोजीशन में मूव भी किया जा सकता है और उसके ऑर्डर्स भी बदले जा सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड इज, वन और मोर स्लाइड्स कैन बी कॉपीड एट वन और सेवरल प्लेस। तो एक या उससे ज़्यादा स्लाइड से उसे एक या ज़्यादा स्थानों पर हम कॉपी भी कर सकते हैं। न्यू स्लाइड्स कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। न्यू स्लाइड हम प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। एनी स्लाइड्स कैन बी डिलीटेड इफ़ इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो वो स्लाइड्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं। यू कैन हाइड वन और मोर स्लाइड्स इफ़ यू डोंट वांट देम एज पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो अगर आप अपने प्रेजेंटेशन के रूप में उसे नहीं चाहते तो आप एक या ज़्यादा स्लाइड्स को हाइड भी कर सकते हैं। स्लाइड्स नेम बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड 1, स्लाइड 2 एंड सो
ऑन कैन बी रीनेम। तो स्लाइड के नाम बाय डिफ़ॉल्ट से होते हैं स्लाइड 1, स्लाइड 2 और इसी तरह से हम उन्हें फिर से रीनेम कर सकते हैं। यू कैन चेंज द स्लाइड डिज़ाइन और स्लाइड लेआउट फॉर द सिलेक्टेड स्लाइड सिमुलेटेनसली। तो आप सिलेक्टेड स्लाइड की स्लाइड डिज़ाइन या फिर उसके लेआउट एक साथ चेंज कर सकते हो।